Thank you very much, Dr. Yogesh Ji, for giving this wonderful introduction as well as welcome to your platform, the BPS HRDC of Sonipat. Thank you very much once again. Shall I start my lecture? Please, sir. Okay, all right. Thank you. Once again, I thanking you for this opportunity, and I would also like to give thanks to all the participants who are with me. Those who are in moving position, they are requested not to open their videos. Please keep off their videos and be aware that what is your position and location is. Thank you very much. So thanks to all the participants who are with me in this refresher course. So please allow me to share my screen for my today's lecture. Is it not visible to you all? Is it visible? Rajesh Dhota ji? It's visible, sir. Okay. Screen is visible, whether my lecture is visible or not. Sir, good afternoon. Lecture is not visible. Good afternoon, Rajesh Dhota ji. Sir, good afternoon, sir. Nice to see you. Thank you, sir. Okay, please let me reshare that again. It takes some time, so please allow me to take a few more seconds or minutes. Is my PPT visible? Yes, sir, it's coming, sir. Screen abhi nazar aa raha, sir. Okay, all right. So, can anyone tell me what is my topic of this lecture? Introduction to MOOC Thank you. and OERS for I just the want online learning and the teaching in education. Right. Thank you. That means my PPT is very well visible to you all. Thank you very much for giving me this response. And now I'll
continue with my this topic. Once again, I thank you all, my dear colleagues and professional colleagues of physical education from the field of physical education. Today, I have been allotted the lecture on Introduction to MOOCs and OERs for Online Learning and Teaching. As I have come to know that the topic of this refresher course is also the present future scenario of physical education and development in this field. So I'll be talking about the MOOCs and OERs, which are very important nowadays to all the teachers who are working in teaching or in other field. The other field means the activity fields or the administrative part of the sports. So what is MOOC? Let me first of all give you an idea about this, and I believe that most of the person might be knowing about this. MOOC is massive open line courses, which has been generally started a few years back in this country and in worldwide also. So the full form of this is massive online courses, which are being conducted by or created by and provided by the government of India through its various platforms. That I'll tell you later on. So next, what is the history of MOOC? The history of MOOC is started long back at 2008, not much long back, but in the 2008 by Dave Cormier from the University of Prince Edward Island for course offered by University of Manitoba, that is the Connectivism and Connective Knowledge. डेव कॉर्मियर एक सज्जन जिन्होंने 2008 में एक कोर्स ऑफर किया था ऑनलाइन मोड के माध्यम से, और इनके पास सर्वप्रथम 25 बोनाफाइड स्टूडेंट्स जो इनके पास थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया, और उसके अलावा जो विश्वविद्यालय के बोनाफाइड स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं थे, उनकी संख्या थी 2300, और जिन्होंने इस कोर्स में एडमिशन लिया. सो दैट वाज एन वेरी गुड ब्रेक व्हिच ही हैज गॉट इन द फील्ड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, दैट number of the people, most of the people or the students from the field of education, they undertook that course, and the number was too much as in comparison to the bona fide students, that is 25:2,300. So seeing this result, it is being observed that this is a very good method, and with the help of technology, we can give this knowledge or impart the knowledge in a very broader sense, in a very broader way. यानी कि काफी संख्या में काफी लोगों को जोड़कर हम उनको और अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं. ये एक वहां से आइडिया मिला. इसके पश्चात उन्होंने जो कुछ इस्तेमाल किया था उसमें ऑनलाइन कोर्स में, वो था एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें वो उसमें मैनेजमेंट सिस्टम के मदद से सारे विद्यार्थियों से जुड़े हुए थे. उसमें वो कुछ अपने ब्लॉग्स भी दे रहे थे और रियल टाइम ऑनलाइन मीटिंग्स भी कर रहे थे, जिसमें उनको सारी इंफॉर्मेशंस, नॉलेज, द वर्क, how to complete the projects and assignments that is to be known by all the students. So they have taken the help of online meetings also. और ये सारा संभव हो पाया है जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है. उसी के पश्चात, इसके पश्चात यदि बात करें कि विश्व में जो पहले विश्वविद्यालय कौन से हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर कुछ कार्य करना आरंभ किए. So these were the Massachusetts Institute of Technology, that is MIT, which started an open courseware and became the first largest collection of MOOC resources made available by university. That means there are certain things which are need to be taken care while providing the online courses to all the students, and that is to provide them the reading materials, research materials, and other things which are related to that particular course, which has been done by MIT in the year 2011. And later on, after developing this kind of stock to all the beneficiaries, they have started the courses in 2012 by the MIT as well as by the Harvard spearheaded. They took the initiative and promotion of MOOC courses in their universities. ये सारी चर्चाएं जो है इसके इतिहास के बारे में की. कुछ इतिहास और कुछ आंकड़े मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो कि
ऑनलाइन एजुकेशन में इंडिया को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं या बढ़ा रहे हैं. As you all know that nowadays there are several platforms which have been created and developed and promoted by different companies to provide education through online mode. And among these, you can name Byju's, and there are so many these companies, private companies which are providing online education. तो ये सब कब आरंभ हुआ? लगभग आप अगर ध्यान देंगे इस पे तो 5 से 8 साल पहले ये सारी चीजों की शुरुआत हुई. भारत में किस प्रकार ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बढ़ रहा है, उसके आंकड़े ये हैं कि जो 247 मिलियन वर्थ इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 2016 में देखी गई थी, और जिसकी उम्मीद थी कि लगभग 1.96 बिलियन 2021 तक इसकी होने की उम्मीद है. और इसका जो बढ़ने का दर था, the annual growth rate of 52% compound annual growth rate, it is being observed with the help of the data which has been collected in the field of or from the field of online education. So it's a huge increase and development in the field of education with respect to the online education we can understand with this data. The number of users enrolled for various online learning courses is estimated to be 1.6 million in 2006 and expected to grow about 9.6 million by the end of 2021. This report was taken before COVID held in the world. So what I believe is that this data might have increased a lot more than what it is being showed here. जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है जो हमने देखा, महसूस किया, वो था कोविड-19. हालांकि यहां पर जो आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 2016 में 1.6 मिलियन 16 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जिसके बढ़ने की दर इन्होंने बताई थी 2021 में लगभग 9.6 मिलियन, दैट इज 96 लाख, अराउंड 96 lakh people will join in the year by the year 2021. लेकिन मेरी ये है कि इससे भी कहीं ज्यादा छात्रों ने इसको ज्वाइन किया होगा, जिसका कारण सबसे बड़ा था कोविड-19. इसी तरीके से आगे कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि 175% इंक्रीज इसमें क्लासरूम एजुकेशन में आ सकती है, ऑनलाइन एजुकेशन में हो सकती है. इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट के साथ आप मैक्सिमम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं. और भारत की जनसंख्या में यदि हम बात करें, लगभग 48% पॉपुलेशन जो है वो 15 से 40 साल के बीच में है और लोअर इनकम ग्रुप से है. तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा मार्केट हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, प्राइवेट वेंडर्स के लिए. बट with respect to the government of India, it is also a very good opportunity they have got to educate most of the children of this country with the help of online education. इसके पश्चात ये भी देखा गया कि एक बहुत पोटेंशियल है इस ऑनलाइन एजुकेशन में, जो कि हमारे इस हायर एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन में यदि हम ये सारी चीजें, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट की हमें आशा है, उम्मीद है. लेटर ऑन मैं अब आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से ये ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं. तो यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम मैं आपसे चर्चा करूंगा कि फायदे क्या हैं. लर्न फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट benefit or the advantage of online education. One can learn whatever material they have been provided by the course coordinators or the different platforms of online education. They can learn from anywhere. No need to go to the classroom or to university or to any institution. So this is a very good advantage of this online education. Next point is save money and time. Yes, of course. It saves the money and time. When the number of the students are more, then you can reduce the fees, or you can have a very nominal fees from them,
and you can provide education to large number of students. So this is a very good example of this, and it saves the time of traveling time, moving from one place to another place. So it saves the time also. ये एक अगला फायदा हो सकता है या होता है. Learn at your own pace. यहाँ पर एक फायदा ये भी है कि आप अपनी स्पीड के गति होती है पढ़ने की. कोई जल्दी पढ़ लेता है, कोई जल्दी याद कर लेता है, कोई स्लो याद करता है. तो वो अपनी गति के अनुसार उसको पढ़ सकता है या लर्न कर सकता है. ये भी एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, फायदा है. रिकॉग्निशन ऑफ ऑनलाइन डिग्रीज. यहाँ पर अब मैं बात करूंगा कि बहुत सारे जो डिग्रीज हैं उनको रिकॉग्निशन है, बहुत सारे संस्थान को रिकॉग्निशन है. जैसे हमारे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी काफी वर्षों से, कई दशकों से चल रही है. उसकी डिग्री को, उसकी सर्टिफिकेट्स को सबको मान्यता है. उसी प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन में भी कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस कुछ जो है इस तरीके से डेवलप किए हैं जिनकी ऑनलाइन डिग्रीज को रिकॉग्निशन है. लेकिन यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखनी है कि बहुत सारे जो है फ्रॉड या हम कहें कि धोखेबाज कंपनीज भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कुछ नुकसान दे सकते हैं, जो कि अपने ऑनलाइन डिग्री की मान्यता उनको नहीं मिलती है और उसके बाद वो जो है बच्चों से फीस ले लेते हैं, फिर उसके बाद उनको डिग्रीज दे देते हैं, जिससे कुछ नुकसान होने का भय यहाँ पर बना रहता है. लेकिन हमको सोच समझ करके अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, तभी हम इसका फायदा उठा सकते हैं. कुछ नुकसान भी है, ऑनलाइन एजुकेशन है तो कुछ नुकसान भी है, उसके बारे में भी चर्चा करना बहुत आवश्यक है. चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन आर वेरी हाई. तात्पर्य यह है कि किसी भी क्षण कोई भी विद्यार्थी अपने पठन पाठन कार्य से जो है भटक सकता है. कारण उसका यह है कि उसको उसके साथ में पीयर ग्रुप नहीं होता है, या उसको कोई याद दिलाने वाला नहीं होता है, या उसको छोटे मोटे जो गाइडेंस हमको पीयर ग्रुप में मिलते हैं उसका लाभ उसको नहीं मिलता है. तो हो सकता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है. इसी प्रकार से अगला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिया है कि फ्रॉडलेंट ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं जिससे हमको बचना है. ये एक बहुत बड़ा इसका नुकसानदायक चीज हो सकती है ऑनलाइन एजुकेशन में, जिससे बचना है. Cannot do courses that require lab workshop. Yes, it is very important point, and it is also related to the field of physical education also. I'm talking about the online education, which is nowhere relevant to BPEd and MPEd courses. Yes, of course. But let me tell you and give you an idea about this, that we can take the theoretical subjects with the help of online courses, and education can be given to all the students with the help of that. I know that the practical work cannot be completed in that field, but for that, another method may be developed or adapted. With the help of that, both can be completed in either the offline mode and online mode. Means some time or some classes or the practical experience may also be given to the students along with the online education. In that, theoretical part can be कंप्लीटेड. अर्थात सैद्धांतिक हमारे जितने भी विषय हैं उनको, सैद्धांतिक जो हमारे विषय हैं उनको कंप्लीट किया जा सकता है ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से. तो यहाँ पर एक फायदा हो सकता है. हालांकि ये एक हरकुलस टास्क है, एक बहुत मेहनत भरा टास्क है और जिसकी मान्यता मिलना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन इस पे कार्य किया जा सकता है. जब इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारा साथ दे रही है, तो हम कुछ ना कुछ इस तरीके की साधनों को डेवलप करना आवश्यक है, जिससे कि हम अन्य शिक्षण और शिक्षा के अन्य माध्यमों और अन्य फील्ड के साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर के चल सकें. ऐसा कुछ हमको सोचना पड़ेगा. तो जैसा कि मैंने कहा कि डिसएडवांटेज है, लैब और वर्कशॉप और प्रैक्टिकल कोर्सेज जो है इसमें संभव नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट जहां तक फिजिकल एजुकेशन की बात है इसमें कंप्लीट किया जा सकता है. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दैट इज दीक्षा, these are the platforms or the developed by the central government from grade 1 to 2. Means the government is working from school education to higher education. In that they are developing these kind of platforms to everyone, all the learners. I would say that all the learners, जो वे सभी विद्यार्थी जो किसी ना किसी कक्षा में या शिक्षण कार्य में
इन्वॉल्व हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनके लिए डेवलप किया जा रहा है, जिससे उनको मदद मिल सके और वो बच्चे जो किसी न किसी वजह से अच्छे स्कूलों में, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठ के पढ़ नहीं सकते, यदि उनके पास थोड़ी सी सुविधा उपलब्ध हो जाए, कुछ गजेट्स अगर उपलब्ध हो जाए, तो वो भी दूसरे बच्चों की तरह इस शिक्षण कार्य में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, शिक्षा में मजबूत हो सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ जो है प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। मीन्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थ्रू डिजिटल मोड, ये बहुत सारे मोड हैं, ऑन एयर है, टीवी चैनल्स हैं, ई टेक्स्ट बुक है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है, ई लर्निंग प्रायोरिटीज, ऐसे कुछ जो है प्लेटफॉर्म्स और कुछ चैनल्स जो है डेवलप किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके माध्यम से ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करें कि इनिशिएटिव ऑफ MOOCs by Government of India in education. I'll say that this is not for the higher education, but in education. The SWAYAM, one of the very important and very good platform which has been developed by the Government of India, that is SWAYAM. There you will find number of courses and number of topics and number of subjects on which, if you are interested, you can take admission or you can register yourself and you can conduct courses of 4-week or 8-week, whatever you decide or you want. There are some other platforms which have been developed by the Government of India in order to promote the online education, and here you can see the name of these online platforms: eKalpa, National Digital Library, SWAYAM, ePathshala, eYantra, Vidhan, and so on. Let me tell you, give you an idea about the ICT Development Index. जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की और टीचिंग और लर्निंग की, दोनों की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है। और उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसको हम समझ सकते हैं कि ICT डेवलपमेंट इंडेक्स, अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडेक्स, जिस किसी देश का ये इंडेक्स बहुत अच्छा होगा, इसका तात्पर्य ये है कि वो अपने सभी नागरिकों के लिए वो सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन आगे बढ़ सकती है, या वहाँ के नागरिक, विद्यार्थी, छात्र छात्राएं उस सुविधाओं का लाभ लेकर के अपने आप को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ सकते हैं। अब जिस किसी देश का ICT डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा, वहां पर वो एजुकेशन भी ज्यादा प्रोवाइड की जा रही होगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। यदि हम इस आंकड़े को भी देखें और समझें कि ICT लर्निंग के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडामेंटल जो गजेट्स हैं या बहुत सारे लैब्स हैं, वो सब चीजें उपलब्ध हैं कि नहीं, तो भारत का नंबर कहाँ पर आता है इसको हम समझते हैं, और सबसे पहला देश इसमें कौन है उसको भी समझते हैं। भारत का इसमें 131वां स्थान है, जिसमें 167 कंट्रीज में से 167 कंट्रीज में से भारत 131 रैंक पे आता है। और जबकि यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे है साउथ कोरिया, उसके बाद UK 5वें स्थान पर है, जापान 11वें स्थान पर है, और US 14th प्लेस पर है, 14वें स्थान पर है। अब हम बात करें, साउथ कोरिया नंबर 1 है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिजिटल गजेट्स जितने भी हैं, या मैं ये कहूँगा कि अधिकतर डिजिटल गजेट्स जो डेवलप होते हैं, चाहे हम टेलीविज़न की बात करें या दूसरे अन्य मोबाइल्स की बात करें या हम लैपटॉप्स की बात करें, कुछ भी बात करें, तो आप देखेंगे एक ब्रांड जो है वहाँ से पूरे वर्ल्ड वाइड जो है बेचा जाता है। इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं डिजिटल क्रांति हम जिसको कह सकते हैं कि वो है, और ICT डेवलपमेंट इंडेक्स उनका नंबर 1 पर है, यानी कि वो सभी चीजें, वो सभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि एजुकेशन को बढ़ावा दे सकती हैं, इंप्रूव कर सकती हैं, वो सब वहां पर उपलब्ध है। दैट्स व्हाई द साउथ कोरियन कंट्री इज एट द नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू ICT डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सारी चीजें जो है भारत में भी डेवलप करने की आवश्यकता है, और इसी की वजह से जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, GER है इंडिया का, वो केवल 24% है। और जबकि दूसरी कंट्रीज का हम बात करें तो वहां पर जो है USA का 84% है, क्योंकि उसका ICT डेवलपमेंट इंडेक्स 14वें नंबर पर है, इसलिए 84% आता है। रशिया का 71 है,
और सबसे ज्यादा तो आप समझते हैं कि जिसका आईसीटी नंबर 1 पर है साउथ कोरिया, उसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन एजुकेशन विल बी हायर साइड, वो ऊपर की तरफ होगा। अब मैं बात करता हूं कि ये सारी चर्चाएं जो है कहां से आरंभ हुई और ये क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मीट या कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई 2015 में, जिसमें यह आवश्यकता महसूस की गई कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दें, आईसीटी इंडेक्स को डेवलप करें या इंप्रूव करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स को डेवलप करें, और उसी के साथ साथ GER, दैट मींस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, that needs to be taken on higher side, means number of students who are joining the online education program should be increased in every country, and for that whatever it's being needed to improve that, to develop that, all the countries will help each other with respect to the data and the other things. So this was the result of that conference, that in the year 2016 the government of India has given a guideline with respect to the credit framework of online learning courses through SWAYAM regulation 2016। कहने का तात्पर्य है, जब 2015 में ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसी के अगले वर्ष भारत में एक रेगुलेशन जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसको हम 2016 नोटिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज जो कि स्वयं के माध्यम से डेवलप किए जाएंगे, उसमें जो क्रेडिट मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, कौन सा व्यक्ति कितना कार्य करेगा, कौन सा कार्य करेगा, उसको कितने उसके लाभ मिलेगा, क्रेडिट मिलेंगे, ये सारी चीजें उस गाइडलाइन में निर्धारित की गई या सभी शिक्षकों को बताया गया, जो भी शिक्षण कार्य में व्यस्त है उन सबको ये बताया गया इस गाइडलाइन के माध्यम से। अब हम बात करें कि वो क्या माध्यम है, वो क्या तरीके हैं जिसकी मदद से हम एक ऑनलाइन कोर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मोस्टली बहुत महत्वपूर्ण बात जो होती है वो 4 कंपोनेंट होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट और 4 क्वाड्रेंट approach which we follow in developing online courses. Number first, the quadrant 1, which is also known as e-tutorials, which contains the e-tutorials, and that must have the videos, audios, and animations or simulations with respect to that particular topic or subject in which that course has been developed, is going to be developed. यानी कि वह कोर्स जो आप बनाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स सभी छात्र छात्राओं के लिए और किसी और के लिए, शिक्षकों के लिए भी इसमें कोर्सेज उपलब्ध होते हैं उनके लिए, तो आपको ये 4 क्वाड्रेंट की जो अप्रोच है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला है ई ट्यूटोरियल, दूसरा जो क्वाड्रेंट है वो कहता है ई कंटेंट, यानी कि इन सब में उस विषय से, उस टॉपिक से संबंधित सभी ई बुक्स, इलस्ट्रेशंस, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरेक्टिव सिमुलेशंस, जो कुछ भी उसके लिए आवश्यक है वो सारी चीजें जो है ई कंटेंट जो क्वाड्रेंट 2 है उसके माध्यम से हम उस कोर्स को करने वाले सभी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएंगे। इसके पश्चात जो क्वाड्रेंट 3 आता है वो है वेब रिसोर्सेस। ये इसके द्वारा जितने भी उस कोर्स से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिंक्स हैं वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह पर, वो उस लिंक्स को वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। केस स्टडीज ये उससे रिलेटेड है वो भी वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि वो छात्र उनको पढ़ करके अपना ज्ञान वर्धन कर सके। यदि उस विषय वस्तु से संबंधित कोई उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है या कुछ आर्टिकल्स हैं तो उसको भी यहाँ पर क्वाड्रेंट 3 में, यानी कि जिसको हम वेब रिसोर्सेज के नाम से कहते हैं, उसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। चौथा क्वाड्रेंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वाड्रेंट है, जैसे कि सामान्य शिक्षण कार्य में हम विद्यार्थी का एडमिशन लेते हैं और उसके पठन पाठन प्रक्रिया के पश्चात वर्ष के अंत में उससे एग्जाम लेते हैं। अब सेमेस्टर के अंत में होता है, उस एग्जाम में जब वो पास होता है तब हम उसको कोई सर्टिफिकेट या डिग्री प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से इन ऑनलाइन कोर्सेज में भी ये आवश्यक है कि हम जो है उनसे उसमें परीक्षा का आयोजन करें और उस परीक्षा के माध्यम से उनका जो लेवल है उसका आकलन हो, और जो भी विद्यार्थी उस परीक्षा को पास करेगा उसको ही वह सर्टिफिकेट या वह डिग्री प्रदान की जाएगी। ऐसा उसमें प्रावधान किया गया है ऑनलाइन एजुकेशन में भी।
तो अब सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या हो सकता है? सेल्फ असेसमेंट में बिल्कुल ऑफलाइन एजुकेशन की तरह जो है एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पर एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्विजेस आपको दी जा सकती हैं, कुछ असाइनमेंट्स भी आपको दिए जा सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं, या फिर कोई डिस्कशन फोरम किसी टॉपिक के ऊपर निर्धारित किया जा सकता है जिसमें उनको उनसे उनकी विचार रखने के लिए कह सकते हैं और उसके माध्यम से उनका मूल्यांकन किसी एक्सपर्ट्स के माध्यम से करवाया जा सकता है। इसी में यदि कोई मिसकंसेप्शन हमारे विद्यार्थी को आता है ऑनलाइन एजुकेशन में, तो आप जो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, वो जिन्होंने कोर्स को डेवलप किया है, वो उस भ्रांतियों को, परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं छात्रों का। तो ये सब सुविधाएं जो है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन में सभी को मिलती है। बात करें अगले उसका कि इससे जब इतना कार्य एक शिक्षक करेगा, जो कि सामान्यतः वैसे ही उसके ऊपर बहुत भार रहता है अपने विद्यालय का कार्य करने में या विश्वविद्यालय का कार्य करने में, और अन्य जो एपीआई फॉर्मेट जो यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डेवलप किया है, उन सबको पूरा करने में काफी व्यस्तता उसकी रहती है। तो जब वह इस प्रकार के कार्य करेगा, मूक कोर्सेज के डेवलप करने का कार्य करेगा, तो फिर उसको क्या फायदा होगा? तो वही जो गाइडलाइन पीछे मैंने आपको दिखाई थी, बताया था कि 2016 में यूजीसी ने एक क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑनलाइन एजुकेशन और कोर्सेज को डेवलप करने का जो गाइडलाइन 2016 जारी की थी, उसी का ये अगला पेज है लास्ट में, जहां पर आपको कितने अंक अर्जित कर सकते हैं जब आप इससे संबंधित कोई कोर्स डेवलप करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप 4 क्वाड्रेंट का एक क्रेडिट कोर्स यदि डेवलप करते हैं, तो आपको 20 अंक उसके जो है अर्जित आप कर सकते हैं, जिसको हम एपीआई पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। और यदि आप जो है कोई मॉड्यूल 4 क्वाड्रेंट में पर मॉड्यूल कोई लेक्चर आप देते हैं, तो 5 नंबर आपके उसमें रहेंगे। यदि आप कोई कंटेंट राइटिंग करते हैं उस सब्जेक्ट से, विषय से संबंधित, आपको उसको 2 अंक मिलेंगे। और जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होंगे मूक्स के, जो कि 4 क्रेडिट कोर्स होगा, इन केस ऑफ मूक्स लेसर क्रेडिट 2 मार्क्स क्रेडिट। यदि वो 4 क्रेडिट कोर्स होगा तो 8 मार्क्स होंगे, और यदि वो 2 क्रेडिट कोर्स होगा आपका, तो उसके 2 अंक मिलेंगे। अगर इस प्रकार से ये सभी अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति उसमें मदद करना चाहता है और अपना ई कंटेंट उनको डेवलप कर रहा है 4 क्वाड्रेंट का, तो उनको 12 अंक मिलेंगे, और यदि कम कर रहा है तो उस हिसाब से अंक थोड़े से कम हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जो भी अपनी उसमें योगदान देगा और मदद करेगा, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंक अर्जित करने का मौका प्राप्त होता है। तो ये फायदा है मूक कोर्सेज वगैरह डेवलप करने का। मीन्स इफ यू आर sparing your valuable time to develop these kind of courses, then you will get a credit of API points, which you can take, or you can have an advantage during your CAS, that is career advancement scheme में उसका लाभ मिल सकता है। चलिए, अब मैं अगली चर्चा आपसे करने जा रहा हूं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में OERs की चर्चा जब की है, तो उससे पहले मैं प्लेगरिज्म जो है यहाँ पर बताया गया कि प्लेगरिज्म क्या है, और इसके ऊपर एक विस्तृत नोटिफिकेशन गाइडलाइन जारी की, जिसमें इन्होंने बताया कि प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2018 के नाम से हम इसको जानते हैं, इन विच दे हैव डिसाइडेड सर्टेन पेनल्टीज एंड सर्टेन important points they have raised to not to develop or not to improve the increase the plagiarism in the field of research work or in other field also. Related field जितने भी हैं उसमें plagiarism को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज, कुछ पनिशमेंट्स उन्होंने, मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डिसाइड किए। तो मैं एक पेनल्टी आपको बताता हूँ। यदि कोई थीसिस या डिसर्टेशन किसी छात्र के द्वारा लिखी जाती है, उस समय यदि वो 10% तक सिमिलरिटी आ रही है, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके माध्यम से वो चेक की जाती है उनकी थीसिस और डिसर्टेशन,
पीएचडी थीसिस भी हो सकती है, एक आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है, असाइनमेंट भी हो सकता है, जो भी है उसको सबमिट करना है। रिसर्च वर्क है हर लेवल पे, मास्टर डिग्री का अलग है, रिसर्च लेवल का अलग है। यहाँ पर जो है पीएचडी गाइडेंस की अगर बात करें तो 10% तक जो सिमिलरिटी है वहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है और वो थीसिस सबमिट कर सकते हैं। जो भी छात्र शोधार्थी है वो अपनी थीसिस को सबमिट कर सकता है। लेकिन यदि सिमिलरिटी 10 से 40% के बीच में मिलती है तो फिर उस शोधार्थी को कहा जाता है कि वो अपने इस जो प्लेगराइज्ड मटेरियल है उसको हटा करके रिवाइज करे और उसको सबमिट करे अगले 6 महीने में, यानी कि 6 महीने का अतिरिक्त समय उनको दे दिया जाता है कि इस त्रुटि को सुधार लें। इस जो प्लेगराइज्ड मटेरियल जो दिख रहा है, जो कि किसी और का है और जो आपकी थीसिस में नजर आ रहा है, उसको आप सुधार लें। लेकिन वही चीज है, यदि 40% से 60% के बीच में शोधार्थी के द्वारा अपने शोध में दर्शाई जाती है या उसके स्क्रिप्ट में नजर आती है तो फिर उस थीसिस को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। और यदि वो सिमिलरिटी किसी और की थीसिस से या किसी भी उपलब्ध सॉफ्टवेयर में जब वो सिमिलरिटी 60% या उससे अधिक दिखती है तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। और इसी तरीके से ये पेनल्टी जब स्टूडेंट्स के लिए हो रही है तो वहीं पर कुछ पेनल्टीज जो है वो गाइड के लिए भी यहाँ पर रखी गई है। गाइड को भी जो है उनके एनुअल इंक्रीमेंट्स रोके जा सकते हैं, 2 इंक्रीमेंट तक उनके रुक सकते हैं और 3 साल तक गाइड बनने का जो उनका एक्सपीरियंस है या सुपरवाइजर बनने का उनको जो है बैन किया जा सकता है। तो ये सब कुछ पेनल्टीज डिसाइड की हैं through the guideline which is being furnished or made available to all the teachers and students of the country with the help of this guideline. Now, so what's the reason behind that and how we can ignore that or how we can come over through that plagiarized material? हम कैसे उससे बच सकते हैं? इसके बारे में बताने से पहले अब मैं आऊंगा अपने इस टॉपिक के दूसरे पार्ट पर, यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज पर, OERs। इट इज नोन एज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2015 में ओपन एजुकेशनल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। उसके पश्चात ये भी डिसाइड किया गया कि जो भी रिसर्च मटेरियल है, जो भी स्टडी मटेरियल है और जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं जो कि एक विद्यार्थी के लिए लाभप्रद हो सकती हैं, वह सभी जो है ऑनलाइन माध्यम से सभी को उपलब्ध कराई जाएं। इसीलिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डेवलप किए हैं और दूसरी कंट्रीज ने भी डेवलप किए हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि OER का असल मतलब क्या होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि OER वही होता है जो फ्री होता है, लीगल राइट्स उसके होते हैं रीयूज करने के, रिवाइज करने के, रीमिक्स करने के और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के या रिटेन करने के। अगर ये सारी चीजें किसी मटेरियल में, किसी स्टडी मटेरियल में, किसी और दूसरी चीज में अगर नहीं है मान लीजिए, तो हम उसको OER नहीं कहते हैं, यानी कि वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स नहीं है। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स से तात्पर्य ये है कि जो कि फ्री हो, लीगल राइट्स हो सभी के पास, कि वो उसका रीयूज कर सके, रिवाइज कर सके, रीमिक्स कर सके, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके और रिटेन कर सके। ये इसका OER का असली अर्थ यही है। इसी से हम समझ सकते हैं कि फ्री मतलब उसमें कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, यानी एक्सेस करने की, नो कॉस्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज। Free only is not OER and resources is not OER unless it is free. Free. Creative Commons license are global standard for openly licensing content and making it OER. अब यहाँ पर जो है जब ऑनलाइन एजुकेशन ये सब चीजें डेवलप हुई तो फिर कुछ नई चीजें भी इसके साथ डेवलप हुई, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज भी डेवलप हुई, जिसमें से एक है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस। जैसा कि हम पीछे अपने पठन पाठन जो हमारे सामग्री हुआ करती थी उसमें जब हम बुक्स को देखते थे तो बुक्स में वहां पर पहला या दूसरा पन्ना पलटते ही सबसे पहले वहां पर उसके यूजेस राइट्स लिखे रहते थे, यानी कि वह सामग्री किसके द्वारा पब्लिश की गई है, किसके द्वारा छापी गई है और उसका ओनर कौन है, उसका जो लीगल राइट्स है वो किसके पास है, ये वहां पर दर्ज होता था या लिखा होता है, अभी भी लिखा होता है। क्या होता है उसको हम समझ सकते हैं कि वो लाइसेंसिंग है, यानी कि वो पर्टिकुलर मटेरियल या बुक किससे संबंधित है और उसके
उसको खरीदने बेचने से होने वाले लाभ, फाइनेंशियल बेनिफिट्स किसके पास जाएंगे, ये सब चीजें वहां पर मेंशन होती थी। और साथ में ये भी होता था, लिखा होता था कि कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता या इसको अपने नाम से नहीं छाप सकता वगैरह वगैरह, ये सब इंस्ट्रक्शंस भी वहां पे दिए होते थे। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स या ऑनलाइन मटेरियल्स जितने भी हमारे पास उपलब्ध हैं, वो किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे और किस प्रकार से आप उनकी सर्च कर सकते हैं, उनकी जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उसको हम क्रिएटिव कॉमन नाम से जान सकते हैं। और उसके कुछ सिंबल भी हैं, कुछ उसके जो है जिसको देख करके हम उस सिंबल को देख करके ये समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो हम किस लेवल तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस लेवल तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मींस there are certain signs of Creative Commons, as you can see right on the screen, that Creative Commons CC within a circle, this is known as Creative Commons. Whosoever has created that particular thing, which type of license he has provided to that particular material, or the creativity depends upon that person who has created that, and only after that license, seeing that license, one can use or reuse that or remix that, or he may not able to do that because this particular licensing or the symbol is not mentioned there. इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इसके आगे भी इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। इसको समझने के लिए आप देखिए, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको दिख रहा है, आप लोग लैपटॉप पे हैं तो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। विद इन अ सर्कल देयर इज एन ओ, और जिसके बीच में एक कट भी है, वो है पब्लिक डोमेन। ये सिंबल जो है वो कहता है पब्लिक डोमेन। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि किसके द्वारा वो कार्य किया गया है, हम जनरली फुटनोट्स के द्वारा अपनी थीसिस में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर वो भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और क्या क्या आपको परमिशंस इसमें मिलती हैं, यानी कि रीमिक्स कर सकते हैं, कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, कल्चरल वर्क्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और यदि आप उसकी कुछ डेफिनेशंस बताना चाह रहे हैं या कुछ रीमिक्स करना चाह रहे हैं, रीयूज वो वहां भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे सब मटेरियल जो आपको ये सारी परमिशंस देते हैं, वहां पर आपको सिंबल मिलेगा पब्लिक डोमेन, दैट इज विद इन सर्कल you will find an O and having a cut in between that. तो ये है। नेक्स्ट सिंबल क्या है विद इन अ सर्कल, CC then by, CC by means what, एट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि वो क्या ओरिजिनली किसका है ये आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन उसके पश्चात यदि आप उसमें कुछ रिमिक्स करना चाहते हैं, कमर्शियल यूज करना चाहते हैं, वो परमिशन आपको आगे ग्रीन दिख रहा है, तो वो सब परमिशंस आपको हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, CC by ऐसे, यानी कि ऐसे का तात्पर्य यहाँ शेयर अलाइक है, और बाई का मतलब था एट्रीब्यूशन अलोन। तो इसमें आपको जो है एट्रीब्यूशन करना है, उसके बाद भी परमिशंस लगभग सेम है जैसे कि ऊपर वाले में था, यानी CC by में था। नेक्स्ट सिंबल पे यदि हम चले तो देखेंगे कि CC by NC, यानी कि नॉन कमर्शियल, दैट मींस द कमर्शियल परमिशन आर बीइंग नॉट गिवन ओवर हियर। ये परमिशन यहाँ पर इस लाइसेंस में छीन ली जाती है, यानी जहां पर ये लाइसेंस दिया गया होगा जिस भी मटेरियल में, जिस भी क्रिएटिव थिंग्स में, तो वो उसका कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है उसको एट्रीब्यूट कर सकते हो, आप उसको रिमिक्स कर सकते हो, लेकिन आप उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसको कहीं कल्चरली वर्क में भी यूज नहीं कर सकते, और ना ही उसकी कोई डेफिनेशंस आप जो है चेंज कर सकते हैं या कुछ वो कर सकते हैं, ज्यादा नई चीज उसमें नहीं जोड़ सकते हैं। अब ये इसमें हो गया। फिर उसके बाद आता है CC by NC ऐसे, शेयर अलाइक। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें भी वही जो CC by NC में परमिशन है, वही परमिशन इसमें भी है। शेयर अलाइक इसके साथ एक शब्द जुड़ जाता है। नेक्स्ट है CC by ND, नो डेरिवेटिव्स। अब यहां पर देखिए, आपके एट्रीब्यूशन आपको आवश्यक है, रिमिक्स नहीं कर सकते, नो। यहां पर जो है समझ में आ रहा है कि आप रिमिक्स नहीं कर सकते, लेकिन इसको कमर्शियल यूज कर सकते हैं, और कल्चरली भी आप नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते, और इसकी कोई डेफिनेशंस यानी इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। यहां पर तो हम वहां पर हमको सिंबल जब दिखेगा ये वाला, तो उसमें ये वाली परमिशंस को हमको समझ में आनी चाहिए, यदि हम इसके बारे में जानते हैं तो।
लास्ट है CC by NC ND, नो डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पर केवल एट्रीब्यूशन ही कर सकते हैं आप, उसके अलावा एक भी परमिशन यहाँ पर नहीं है, यानी रिमिक्स नहीं कर सकते, कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, कल्चरल वर्क में भी यूज नहीं कर सकते, डेफिनेशन भी कर सकते। आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड that you will able to understand that what about these signs are and what is the definitions of these signs or the licenses, rather I'll say licenses, कि इनका मतलब क्या है और इनके जो है वो सिंबल क्या है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, ये सब समस्याएं तो हमारे पास हैं, लेकिन अब हम चूंकि एक शोधार्थी, एक विद्यार्थी जब अपने इस समुद्र में डूब जाता है, इंटरनेट के समुद्र में डूब जाता है, तो वो ये गलती कर ही जाता है कि कहीं ना कहीं से कट कॉपी पेस्ट या डाउनलोड करके वो अपने उसमें शिक्षण कार्य में या किसी शोध के कार्य में उसमें लगा देता है और वो उसको नुकसान होता है। तो हम ऐसे OER मटेरियल्स को कहाँ ढूंढें, ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिसका जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। हर देश में, जैसे कि मैंने कहा, 2015 के पश्चात हर देश में ये संदेश गया कि वो अपने लेवल पर अपनी कंट्रीज में एक जो है पठन पाठन सामग्री और रिसर्च रिलेटेड जितनी भी सामग्री है वो सब अपने एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से सभी को उपलब्ध कराएं। तो उसी में जापान ओपन कोर्स वेयर कंसोर्टियम, ये जापान का जो है अपना प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जहां पर ये सारी चीजें जो भी लेटेस्ट और पुरानी जितनी भी रिसर्च है, वर्क है, एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल पूरा यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है जापान के द्वारा। ठीक इसी तरीके से यदि हम बात करें क्रिएटिव कॉमन्स कोरिया, ये देखिए क्रिएटिव कॉमन्स कोरिया, ये कोरिया का क्रिएटिव कॉमन्स वेबसाइट है जहां से ये सारी चीजें जो है छात्रों के द्वारा यूज की जा सकती हैं, डाउनलोड की जा सकती हैं और उसको अपने एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल में उसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ OERs, ये सारी चीज एक वेबसाइट है जहां से जो है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आप कलेक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IITB, OER4S फॉर स्कूल्स, ये भी एक वेबसाइट है और प्लेटफॉर्म है जहां से हम ये सारा मटेरियल जो है ढूंढ सकते हैं या उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, दैट इज NPTEL, जो कि एक वन ऑफ द वेरी मेजर पार्टनर है अपने स्वयं का, जहां जब आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे पार्टनर है नीचे जो है वो सब लोग अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको इसमें स्वयं के प्लेटफॉर्म्स में जो है पार्टनर बनाया गया है, या यूं कहें कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बनाया गया है, जो कि ये सारे अपने अपने विषय के कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज को डेवलप करने में मदद करते हैं या इनिशिएटिव्स उन्होंने लिया है और वो अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर्स वगैरह वो सब डेवलप करते हैं, कार्य करते हैं इसके ऊपर। और भी बहुत सारे OERs की जो वेबसाइट्स हैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। फ्लिकर फोटोज, पिक्साबे, soundcloud.com एंड WWOERs। बहुत सारी जर्नल्स भी हैं जो कि इसके ऊपर कार्य करती हैं और ये सारे OERs के अंतर्गत आती हैं जिसमें आप मदद ले सकते हैं। ये ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, आप इनको इजीली ओपन कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं विद सम चेंजेस, seeing the permission which has been given to that particular journal or not। देखिए सर, आप सभी समझ रहे हैं कि इस अभी जो टेक्नोलॉजी एनहेंस हो रही है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लेकर के आ रही है। Nowadays we are seeing a blended learning। What does it means it is a combination of traditional teaching as well as the virtual learning by using video conferencing or the other things which are involved in e-learning, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अब जो टीचिंग लर्निंग का जो मोड है वो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो चुका है और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण, अब ये चीज किसी के समझ से दूर नहीं है कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है। पिछले कोविड-19 में जब ऑनलाइन एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे थे, अपने साथ छात्रों से संपर्क कर रहे थे और उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनसे जुड़ रहे थे और उनको टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड कर रहे थे, उसमें इन्वॉल्व कर रखा था। वो माध्यम जो था वो यही था। पहले तो ऑनलाइन था पूरा और उसके पश्चात जब खुल गया तो फिर आपने उसको जो है
क्लासरूम से उनको कुछ चीजें पढ़ाई होंगी, कुछ उनको उनको एक्सप्लेन किया होगा, कुछ उनके डाउट्स क्लियर किए होंगे. So that's what the blended learning means, having a traditional classroom teaching as well as providing them the online education through virtual modes, through using different technologies in that. And nowadays it is very useful, and most of the even the, I would say, the coaching classes and the other platforms, they are also using this kind of teaching and learning for their students and all the aspirants who are preparing for different exams in for IIT or for medical or for UPSC or for any other programs. So this is one of the very good platform or things have been developed in blended mode. Flipped classroom. Now this is very important. What does means the flipped classroom? फ्लिप्ड क्लासरूम से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप जो है, जैसे अभी हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था कि छात्र आते थे और हम उनको जो है सारी शिक्षा उनको क्लासरूम के अंदर देते थे और उनके सामने जो भी चैप्टर हम उनको पढ़ाते थे उसके बारे में उनके साथ डिस्कस करते थे या उनको बताते थे. लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में ऐसा है कि हम सारा मटेरियल जो है उनको स्टूडेंट्स को ऑनलाइन उपलब्ध करा देंगे और ये उनसे कहा जाएगा कि वो सब उस मटेरियल को पहले पढ़ के आए. यानी कि हम किसी टॉपिक को या सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं, तो चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, तो वो पहले ही हम अपने छात्रों को उपलब्ध करा देंगे और उनसे कहेंगे कि आप उसको पढ़ के आइए. जब सारे छात्र उसको पढ़ के आएंगे, उसके पश्चात क्लासरूम में टीचर सिर्फ उसके ऊपर डिस्कशन करेगा और उनकी जो भी क्वेरीज होगी, जो भी डाउट्स होंगे, उनको क्लियर करेगा. तो ये एक अच्छी माध्यम और अच्छा तरीका है जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने टीचिंग में प्रोग्राम में, जिससे कि हमारा समय भी बचेगा और छात्रों के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी डेवलप होगी. यदि छात्र ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जब पढ़ के आएंगे तो उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की या उस विषय की हो सकती है, ऐसा मेरी उम्मीद है. तो नाउ द थिंग्स हैज बीन चेंज्ड एंड वी मस्ट आल्सो अडॉप्ट सम ऑफ द थिंग्स ऑफ दीज टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर्स और टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज, जिससे कि हम अच्छे से अच्छी एजुकेशन अपने छात्रों को उपलब्ध करा सकें. आगे चलता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार होते हैं, किसकी मदद से होते हैं. बताने की आवश्यकता नहीं है, काफी लोगों को अनुभव हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नाम यहाँ पर बताना चाहूंगा. मूडल, गूगल क्लासरूम, सैप, लिटमस, LMS, लर्न अपॉन LMS, इंक्वाइजिंग. तो इसमें सबसे अच्छा जो है वो मूडल है. एक बहुत अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. हालांकि पहले काफी एजुकेशन या फ्लिप्ड क्लासरूम वाला जो सिस्टम है, जिसमें अगर आप अपने छात्रों को जोड़ लेंगे तो फ्लिप्ड क्लासरूम वाली जो थ्योरी है, उस references of my lecture. Now I'll give you some of the important practical aspects and practical knowledge of the OERs and other things. कि हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो कहाँ से जो है वो सब चीजें कलेक्ट कर सकते हैं, या हम जब भी रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, तो हमको किस प्रकार से कुछ मदद मिल सकती है इस प्लेटफॉर्म्स में. जो अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, उसमें से काफी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको जो है जोड़ता हूँ एक नए टैब से और बताता हूँ कि किस प्रकार से
थोड़ा सा समय दीजिएगा प्लीज। चलिए मैं स्क्रीन ही काउंट करता हूँ। ऑलराइट, आपकी स्क्रीन पे गूगल आ गया होगा, गूगल दिख रहा है Yes, क्या? sir. ओके फाइन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको एजुकेट करना है अपने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, फिर दूसरा एग्जांपल ले लूंगा, कंप्यूटर एजुकेशन। दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है ना? स्क्रीन चेंज हुई, देखी क्या आपको? जी सर। जी सर। Okay, fine, fine. I am clicking one of the this another website. I hope it is available for you. It is visible to you. Sorry, मैंने उसको दोबारा से मैं लेता हूँ। कंप्यूटर एजुकेशन के लिए जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर क्विक सेटिंग पे हम जाएंगे, राइट हैंड साइड में दिखा होगा, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं? मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ वो दिख रहे हैं अगर, तो प्लीज मुझे रिस्पांस करिए, नहीं तो फिर मैं उसको चेंज करूँ। दिखा क्या? मैं Yes, sir, दिख रहा है। अच्छा, इस वक्त मेरा कर्सर कहाँ है? चलिए बताइए। राइट बॉटम पे है सर। अच्छा, राइट साइड पे। चलिए ठीक है, राइट साइड पे है। मुझे लग रहा है ज्यादा लोग मोबाइल पे हैं, इसलिए शायद रिस्पांस नहीं कर पा रहे। जो लैपटॉप पे होंगे शायद उनको वो थोड़ा बड़ा दिखेगा तो वो उसको रिस्पांस कर सकते हैं। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, मैंने एडवांस सर्च पे गया। जब मैंने कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड जो है मेरे को टॉपिक या मटेरियल चाहिए था, और तो मुझे उससे पहले मैंने चाहा कि मैं इसको जो है एडवांस सर्च करूं, और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आज की डेट में इंटरनेट पे उपलब्ध है कि नहीं, ये उसका बेहतरीन एक एग्जांपल या प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं। अब देखिए, अब मैंने ड्रॉप बॉक्स पे जब उस पर क्लिक किया तो नीचे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अगर मेरे लिए कोई पढ़ दे जिसके पास लैपटॉप है तो मुझे सुविधा होगी और अच्छा लगेगा। No one is on with the laptop. Just let me know. Not visible, sir. नहीं, लैपटॉप है। स्क्रीन अब दिख रहा है? अभी दिखाई दे रहा है सर। हाँ, चलिए मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने ड्रॉप बॉक्स पे जो है ना वो क्लिक किया तो नीचे मुझे 4-5 ऑप्शंस आए हैं। Not filled by license. बस ठीक है, थैंक यू। दैट मीन्स आपको वो दिख रहा है। तो सबसे नीचे ऑप्शन ये मिलता है जिसका टाइटल है यूजेज राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, जिसको यूजेज राइट्स के नाम से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जितना भी मटेरियल आपको गूगल आपको प्रोवाइड करेगा वो लाइसेंस के माध्यम से फिल्टर्ड नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो नीचे जो ऑप्शन है वो कहता है फ्री टू यूज और शेयर, यानी कि इसको क्लिक करने के बाद आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करेगा गूगल, वो आप उसको फ्री है, उसको आप यूज भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको उससे ज्यादा परमिशन चाहिए। तो हम अगले नीचे वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो वो कहता है कि फ्री टू यूज और शेयर इवन कमर्शियली। आप उसको कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो भी मटेरियल हमको गूगल प्रोवाइड करेगा वो सब ये सब परमिशन के साथ होगा। नेक्स्ट जो है फ्री टू यूज, शेयर और मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। और लास्ट में सबसे ज्यादा परमिशन है जो कि है फ्री टू यूज, शेयर और मॉडिफाई और इवन कमर्शियली। चलिए हम सबसे आखिरी वाला जो है क्लिक करते हैं और एडवांस सर्च पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है जो ऑप्शंस आते हैं वो क्या क्या आते हैं। पहले जो ऑप्शन आ रहे थे वो दूसरे थे, अब जो ऑप्शन आ रहे हैं वो दूसरे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले विकिपीडिया तो जनरली सबसे पहले आता ही है, लेकिन ये है MDPI कोई है, थर्ड एज यूनिवर्सिटी, जिसका ये मटेरियल इस पे पड़ा हुआ है, लिटरेसी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर एजुकेशन
जर्नल ये भी यहाँ पे मिल रहा है आपको, और ये भी सारी चीजें मिल रही हैं। तो ये सारी परमिशंस के साथ अगर आप सर्च करेंगे, यानी कि आपको इस्तेमाल क्या करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उस हिसाब से मुझे नहीं लगता आप में से कितना ने इस तरीके से कभी गूगल पे सर्च किया होगा। किया है क्या किसी ने? यस सर। Very good, sir. Yogesh ji. Thank you, sir, for giving me this response. So, with the help of this, you can take an advantage of what is being the facilities given in online mode or in this technology or internet provided on the internet. ठीक है. Next जो है हम बात करते हैं, ये तो हो गया गूगल सर्च के बारे में। अगर इसी पे हम जो है बहुत सारे वीडियोस अगर हम अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं या अपने उस मूव के कोर्सेज में डेवलप करना चाहते हैं, यदि इस पे कोई कार्य करता है तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो उसमें से कोर्सेज डेवलप करने के लिए शारीरिक शिक्षकों को ही आना पड़ेगा, और खास करके वे शारीरिक शिक्षक जो कि शिक्षण कार्य में पूर्णतः जुड़े हुए हैं, अर्थात यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कहीं भी एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, बीपीएड एमपीएड। तो उन टीचर्स को आगे आना पड़ेगा और उनको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, जो भी हमारे लर्नेड लोग हैं। तभी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स के कुछ अच्छे मूव कोर्सेज डेवलप हो सकते हैं। चलिए, मैं चर्चा कर रहा था कि यूट्यूब आप खोलते हैं और उस पर देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से हमको ज्यादातर सर्च करनी चाहिए। आई होप जो स्क्रीन मेरी चेंज हो रही है वो आप सभी लोगों को दिख रही होगी। यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए, यहां पर भी जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है वीडियो हमको ढूंढना है। एक अच्छा वीडियो मुझे अपने छात्रों को उपलब्ध कराना है, अगर मैंने उनको गूगल क्लासरूम से जोड़ रखा है। और आज के समय पे मेरा मानना यह है कि जो डायरेक्ट टीचिंग में इन्वॉल्व है वो अपने छात्रों को गूगल क्लासरूम से जोड़ के रखे तो शायद उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। उनके अपने के लिए भी बहुत सुविधा हो जाएगी, उनके छात्रों के लिए भी बहुत सुविधा हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड यहाँ पर डाला है और उससे रिलेटेड सर्च मैंने किया है, तो उसके बाद जो ऑप्शन यहाँ आता है और लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फिल्टर्स एक लिखा हुआ है। तो इस फिल्टर्स को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी जो चीज अभी लेक्चर में पीछे आपने सुनी थी वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और वो ऑप्शन कहाँ पर है, अगर आप मुझे जो है पढ़ के बता दें तो ज्यादा अच्छा है। और क्या लिखा है ये बता दीजिए। Whosoever is having laptop and able to see that, able to locate that, can anyone tell me that? No response. Okay, fine, I am telling you. Creative Commons, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे अपने लेक्चर में कि क्रिएटिव कॉमन्स, तो क्रिएटिव कॉमन्स की जो लाइसेंसिंग है उसके द्वारा, उसके माध्यम से जब हम सर्च करेंगे तब हमको ये बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके लाइसेंसेस को चेक करके और ये किस हद तक हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्रीली और OER वीडियोस हम इनको कह सकते हैं कि ये OER हो सकते हैं। ये एक रिनाउंड प्रोफेसर हैं इसके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के या कंप्यूटर एजुकेशन के, इनका वीडियोस यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये कई जगह इनके वीडियोस हैं। अपने इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं ऑनलाइन और टीवी पर और दूसरे चैनल्स पर, वहां पर भी इनके वीडियोस बहुत देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हमने क्रिएटिव कॉमन्स के माध्यम से सर्च किया तो कुछ वीडियोस जो है पहले जो है वो दूसरे आ रहे थे और अब जो है दूसरे आने लगेंगे। So this kind of search will definitely help you in getting the OERs, rather I will say. चलिए, कुछ और उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ और बता सकता हूँ कि जो अपने वीडियोस को बहुत अच्छा बनाने के लिए और क्रिएटिविटी उसमें क्रिएट करने के लिए और अच्छे फोटोग्राफ्स और साउंड्स वगैरह आप कहाँ से ले सकते हैं, ये भी थोड़ा सा आप जो OERs के अंतर्गत आते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं।
pixabay.com का देता हूं। एक ये वेबसाइट है जिसपे जाकर के आप जो भी मटेरियल ढूंढेंगे, ये देखिए 2.7 मिलियन एंड स्टनिंग फ्री इमेजेस टू यूज एनीवेयर। ये देखिए, तो इस वेबसाइट को हम खोल लेते हैं और इस पे हम सर्च करते हैं सॉकर प्लेयर। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं सॉकर प्लेयर। देखिए प्लेयर्स, ये लीजिए, ये इतने सारे फोटोज आपके सामने आ गए हैं और ये OER है। आप इनको जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किसी भी एजुकेशनल PPT में उसको फिट कर सकते हैं, जस्ट टू गिव अ वेरी गुड इमेज ऑफ व्हाट यू वांट टू टीच टू योर स्टूडेंट्स। अगर OER और इन वेबसाइट से आप उठाएंगे तो इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन यदि किसी और वेबसाइट से आप उठाएंगे, हो सकता है कि आपको कभी कोई चैलेंज आ जाए। अगर मतलब हालांकि ये इतना बड़ा लिटरेचर इसके अंदर है कि कोई जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सेफ साइड चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे फोटोग्राफ्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट कम्स अंडर OERs एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ pixabay.com। देखिए, बात प्लेगरिज्म की और OERs की और उसकी आती है तो एक आप ये चीज तो जानते ही हैं कि कोई भी क्रिएटर जो होता है और उसकी जो क्रिएटिविटी है उसका क्या मूल्य होगा और वो उस पर मूल्य लेगा कि नहीं लेगा, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी के अंदर जो है बहुत सारी चीजें वर्ल्ड वाइड चैलेंज हुई जब एक क्रिएटर ने उसको क्रिएट किया और दूसरे व्यक्ति ने उसको कॉमर्शलाइज कर दिया, तो क्रिएटर ने उसको चैलेंज किया। ये सारी चीजों को देखते हुए ये सब वेबसाइट्स या क्रिएटर्स या कुछ लोगों ने फ्रीली जो काम करते हैं, जो चाहते हैं कि उनके कार्य को, उनको बहुत ज्यादा कोई पैसा कमाने की उनको चाहत नहीं है और लोगों को फ्रीली उपलब्ध करा सकते हैं, तो वो लोग अपने कार्य को इन वेबसाइट्स पर, इन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर देते हैं, जिसको कि कोई भी कहीं से भी जो है डाउनलोड कर सकता है यदि उसको कोई आवश्यकता है। ये एक उदाहरण जो है हमने दिया फुट सॉकर प्लेयर का। अब यहाँ पर जो है हम एक और मांग सकते हैं। जनरली हम सीधे गूगल पे जाकर के कोई भी पिक्चर डाउनलोड करते हैं और उसको अपनी PPT पे लगा देते हैं, तो वो सजेशन यहाँ पर मैं नहीं दूंगा और मैं इसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप इस प्रकार के पिक्स को जो है ले सकते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट्स पे। अब ये बास्केटबॉल प्लेयर्स की मैंने फोटो यहाँ पर ली है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इतनी सारी फोटोज जो है अवेलेबल है। आपको जो अच्छी लग रही है वो आप वहाँ पर अपने PPTs में और उसमें ले सकते हैं, या और कोई वर्क आप कर रहे हैं, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, वहाँ पर वो यूज कर सकते हैं। दीज आर फ्रीली अवेलेबल। अगली वेबसाइट में आपको ले चलता हूं, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके PPT के साथ बहुत अच्छा साउंड भी चले और वो साउंड जो है आपके उस वर्क को और इंप्रेसिव बना दे और इफेक्टिव बना दे, तो आप हेल्प ले सकते हैं soundcloud.com का। soundcloud.com ये भी वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे साउंड्स जो है अवेलेबल हैं, अपलोडेड हैं क्रिएटर्स के द्वारा, या जिसकी ये वेबसाइट है उन्होंने जो है अपलोड कर रखे हैं, जिससे कि आप कुछ भी फ्रीली उठा सकें, ले सकें, उसका वो कोई चार्ज नहीं करते। यहाँ पर अब हम डिमांड कर सकते हैं इनसे, फॉर एग्जांपल क्या डिमांड कर सकते हैं इनसे, साउंड ऑफ एन स्टेडियम। ओके, चलिए, साउंड ऑफ एन सॉकर मैच। ये सर्च हम कर रहे हैं और जब हम यहां पर देखेंगे तो कुछ साउंड्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये सारे So likewise, I have given 2-3 examples to all everyone that how you can
collect the OERs from different websites and freely available materials, videos, and other things from YouTube and Google, as well as from the different freely available websites. That will definitely help all the researchers and the teachers as well as to the students कि वो इनकी मदद से जो है अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स अपने लर्निंग मटेरियल को डेवलप कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं अपने छात्रों के लिए। ये सारी चीज़ों के साथ मैं अब आप सभी से आग्रह करूंगा, यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ और जानकारी आप लेना चाह रहे हो तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ अपनी ओर से। Thank you, sir. Dear participant, now session is open for questions. आप पूछ सकते हैं सवाल सर से। Hello. Yes. Good evening, sir. Good Dr. evening. नरेंद्र DAV Yes. कॉलेज फरीदाबाद से। हाँ जी जी सर, जी नवीन जी, आवाज आ रही है, बोलिए। सर, ये ओपन और ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं, क्या इंडिया में अभी पॉसिबल है? हाँ, इंडिया में पॉसिबल है। इससे As per रिलेटेड नहीं, वो तो इंटरनेट पे उपलब्ध है ना, तो इंडिया में तो पॉसिबल है वो। और इससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूजीसी ने और जो है वो डेवलप कर दी हैं, तो उसके हिसाब से आप मदद ले सकते हैं। सर, ओपन और अर्बन एरिया में तो पॉसिबल है, लेकिन रूरल बैकग्राउंड में जहाँ नेटवर्किंग नहीं है, जहाँ पे है ना हाँ, एंड्रॉइड, आईफोन मैं अवेलेबल नहीं है। यही सवाल जो है इस लेक्चर का एक अच्छा सा सवाल यही बनता है जो आपने पूछा है। यही तो मैंने कहा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो गवर्नमेंट जो इंडिया का है वो 131 है आउट ऑफ 167 कंट्रीज, 131वें स्थान पर है। लेकिन क्या आप महसूस करेंगे, क्या आप ये समझेंगे, इस बात को भी समझेंगे कि कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार से छात्रों से जुड़ा गया है और उसमें जो है हमारा इंडेक्स कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम कहीं ना कहीं मीट आउट कर रहे हैं, यानी कि उसको पूरा कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि 2012 से पहले या उसके आसपास जो डेटा का हमारा कंजम्पशन हुआ था या उसका जो एक्सपेंडिचर हुआ करता था, एक्सपेंसेस हुआ करते थे, वो काफी होता था, 1000 रुपए, 1200 रुपए, आप समझ रहे ना? हाँ जी, यस सर, यस सर। लेकिन आज की डेट में जो है वो डेटा इतना सस्ता हो गया है कि आज एक ठेले वाला भी जो है वो अपना एंड्रॉइड फोन है सर उसके पास, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है। और धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है इसको डेवलप कर रही है कि जो हमारा हम तो एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और 5G 4G फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक जो छोटे कीपैड यूज करने वाला व्यक्ति भी जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सके आराम से, ये चीजें जो है गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। इसी प्रकार जो रूरल एरियाज में है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, यही चीज तो डेवलप करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि किस प्रकार से हम वहाँ स्कूल बनाए बगैर उन बच्चों को, उन छात्रों को शिक्षित कर सके। यही तो उपलब्धि है। इसमें इसका एक एडवांटेज जैसे कि कहा कि इट सेव्स टाइम एंड मनी। यहाँ पर वो छात्रों का, अगर उनको जो है ये सब चीजें उपलब्ध करा दी जाए, छोटा फोन उपलब्ध करा दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, या वो इतने सक्षम हो जाए कि वो फोन खरीद लें और फिर उनसे उनको जोड़ा जाए और वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है डेवलप कर दी जाए, तब ये एक्चुअली है ना सर, तभी ये संभव है। और मैं ये मानता हूँ और आप भी होंगे, कुछ ना कुछ धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं, भले ही हम, लेकिन इस दिशा की ओर। यस सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जैसे डाटा भी दिया, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम स्कूलों में टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन वे बच्चे सिम परचेज करने के लिए कैपेबल नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात। उनको भी हमको जोड़ना आवश्यक है और समय आएगा भविष्य में जब इसके लिए भी जब बजट निकलेगा तो उनको सिम और वो सारी चीजें भी जो है प्रोवाइड की जाएंगी। क्योंकि जब भी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तभी सक्सेसफुल होगा, चाहे स्वेम पोर्टल है। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। अब जैसे साउथ कोरिया की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट की और वहाँ के नागरिकों की जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम अपने यहाँ जो है IIT, UPSC और मेडिकल के एग्जाम होते हैं। इसी प्रकार से कोरिया में, साउथ कोरिया में जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अपने यहाँ IIT है, वो एग्जाम जब होता है तो आप विश्वास मानिए कि जिस शहर में उसका सेंटर होता है उस शहर में
उस पर्टिकुलर टाइम तक, यानी कि अगर वो 3 घंटे का एग्जाम है तो 3 घंटे, और अगर 6 घंटे का है 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में, तो उस पूरे टाइम पे ना कोई फ्लाइट उतरती है ना कोई फ्लाइट चढ़ती है, पूरा टोटल बैन रहता है। इसके बाद एक और नियम है कि कोई भी जो है किसी भी प्रकार की ऐसी आवाज नहीं करेगा जिससे कि छात्र डिस्टर्ब हो अपने एग्जाम को क्लियर होने में या उसको देने में, पेपर को देने में। अगर किसी को वहां अलाउड, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको जो है बाकायदा नियम है, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर वहां पर किसी को शोर करने की इजाजत है तो वो केवल एक छोटे बच्चे को है जो कि रो सकता है। तो जब इस प्रकार की सोच होगी सर पूरे गवर्नमेंट की और पूरे वहां के नागरिकों की, जब इस प्रकार की सोच होगी तब कहीं जाके जी सर, यस सर, यू आर राइट। एक्चुअली ऐसा ही होगा जब ये है ना पॉसिबल है। हाँ, तो वो सर धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से कितना कर पाती है वो करने की कोशिश कर रही है। पीछे जैसे एक गवर्नमेंट ने लैपटॉप बांटे थे स्टेट में, फिर कोई टैबलेट बांट रहा है। आगे चल के भविष्य में हो सकता है उनका डेटा भी फ्री रहेगा, जो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं उनका वो गवर्नमेंट पे करेगी कुछ भी, और उसमें आ सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारी सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं। तो उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद है, और धीरे धीरे देखिए ऑफलाइन एजुकेशन टोटली खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात हो रही है कि जहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो कुछ लाखों में अगर ये काम हो रहा है तो इसको क्यों ना इसको करके उनसे जोड़ा जाए। बिल्कुल सर, बस इसी उम्मीद के साथ ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं, वर्ल्ड वाइड बढ़ रही हैं, तो हम उसमें पीछे नहीं रह सकते। और जब सभी विषयों में बढ़ रही हैं तो हम शारीरिक शिक्षा को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। यस ये सब चीजें हैं सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। Any more query or question? Rajesh Dota ji? सर कहाँ अभी वही है क्या अपने एमिटी? बिल्कुल सर, वही है सर। हाँ, वो पीछे बिल्डिंग तो आ रही है। मेरा पूर्ण स्थान है तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही ये सब देख के। चलिए, और सब ठीक है ना? All well sir, all well sir. Okay, that's great. Any more query from any side? Should I conclude this? Thank you sir, सारे डाउट्स क्लियर है सर एकदम। नहीं, अब तो काफी साल इस्तेमाल करते हुए हो गए हैं लोगों को, इसलिए भी बहुत डाउट्स नहीं है। जब देखिए योगेश सर भी इस पे क्लास लेते हैं, जब योगेश सर ने कहा यस सर आई यूज दैट, तो मुझे थोड़ा सा स्माइल मेरे चेहरे पे आई, बिकॉज ही इज आल्सो डिलीवर लेक्चर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और बहुत अच्छा जो है वो लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोविड से पहले हम ये सब बातें करते थे ना, तो बहुत ज्यादा जो है लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती थी। योगेश सर, एम आई राइट? यस सर। कोविड से पहले, लेकिन कोविड ने सबको सिखा दिया किस तरीके से बच्चों से कनेक्ट होना है, प्लेटफॉर्म्स में कैसे जाना है, और ये वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब तो काफी एक्सपीरियंस टीचर्स को भी हो गया है, हालांकि तो इसलिए ये सब आसान अब हो गया है। लेकिन अभी ये इसमें फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज सर काफी कम है, इसमें कम है, तो इसीलिए तो मैंने बीच में 2 लाइन बोली थी डियर, इसीलिए तो बोली थी यहाँ पर उन शिक्षकों को आना जरूरी है जो रेगुलर टीचिंग में है। आप समझिए बात को। अब हमारे साथ दुर्भाग्य ये है कि हमको थ्योरी भी पढ़ाना है, हमको प्रैक्टिकल भी पढ़ाना है ना, और हमारा पूरा टाइम उसी में मॉर्निंग टिल इवनिंग जो है उसी में कवर हो जाता है। किसी भी संस्थान की बात करें, मतलब 8 घंटे में, जैसे एमईटी की बात करें अगर, तो शुरू में थ्योरी क्लासेस हैं, शाम को लंच के बाद सीधा जो है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाना ही जाना है, और दूसरी जगह बात करें तो मॉर्निंग इवनिंग एक्टिविटी है, दिन में थ्योरी है। तो मतलब कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव लोग, जो सीनियर लोग हैं और जिनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनको आगे जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको कुछ कोर्सेज डेवलप करने चाहिए। योग पे कोर्स दिखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो न्यूट्रिशन पे दिख जाते हैं, वेट मैनेजमेंट पे कुछ दिख जाते हैं, इस तरीके से कुछ बहुत मिनिमम कोर्स दिखे हैं लोगों को। फिजिकल पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्सेज डेवलप करने वाली बात है, जैसे मतलब हम बायोमैकेनिक्स की बात करें, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की बात करें, किन्शियोलॉजी की बात करें, फिर फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की बात करें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें, तो जो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं और रेगुलर टीचिंग में है, दे कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ, और दे शुड डेवलप अ टीम। अगर मान लीजिए टेक्नो सेवी नहीं है तो एक टीम डेवलप करें, जूनियर्स को साथ में लें, तो उसमें जो भी जितना योगदान देगा उसको उतना क्रेडिट मिलेगा, ऐसा यूजीसी गाइडलाइन में है।
तो बस वही बात, इसीलिए तो मैं वो पॉइंट रेज करता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन को भी दूसरे विषयों के साथ 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 कदम से कदम मिलाकर के अगर चलना है तो ये सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी। थैंक यू। राइट। एग्रीड सर। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार का मैंडेट है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो अभी स्कूल में 56% के अराउंड है और हायर एजुकेशन में 27% है, उसको 50% और स्कूल एजुकेशन में अगर 100% करना है तो मुझे लगता है कि ये 51,000 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस और 15 लाख के करीब जो स्कूल्स हैं, इनका नंबर ऑलमोस्ट डबल करना बहुत मुश्किल होगा। तो अल्टरनेट मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन ही दिखता है। एंड यू वेरी राइटली सेड दैट वी नीड टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। और सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, देयर इज अ ओनली कोर्स फॉर बीपीएड, आई सपोज, जहां तक मुझे आइडिया है, वो फिटनेस मैनेजमेंट पे है और चरणजीत मणिपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिजाइन किया है, स्वयं के प्लेटफॉर्म पे है, चरणजीत सिंह। टुमारो ही इज गोइंग टू स्पीक इन दिस सेशन सर। Okay, that's great. So you will get an तो sir, please continue. although प्लीज आई लेट यू नो सर। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में नो डाउट टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन जो होगा वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्पोर्ट्स में। बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। मैं पीछे किसी रिपोर्टर से मिला था, आशीष है एक लड़का, ही इज आल्सो डेवलपिंग सम मॉड्यूल्स ऑन आर्चरी, और अलग अलग गेम्स के जो मॉड्यूल्स हैं वो धीरे धीरे से डेवलप हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहां पे, क्योंकि हम लोग भी अगर देखें तो वी आर स्पेशलाइज इन 1 और 2 एरियाज। अगर मैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की बात करूं तो अगर मैं चाहता हूं कि बहुत सारा स्पेशलाइजेशन की चीजें बच्चों तक पहुंचे तो मूक्स उसका एक अल्टरनेट हो सकता है। With this, I'm thankful to you, sir. You have given us this opportunity to hear you, and it was nice interaction. I suppose सभी काफी उत्साहित होंगे, मोटिवेटेड होंगे, और बड़ा एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आपने जो सारे ऑडियंस को बताया, मुझे लगता है कि सारे लोग इस आपके लेक्चर से लाभान्वित होंगे। Once again, sir, thanks a lot. It was a great experience for all of us. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you very much, sir. Dr. Yogesh, sir, the course coordinator of this course, for providing me this opportunity and interacting with the participants of this refresher course. Thank you very much to all. Thank you. Thank you, sir. So, tomorrow's speaker I have already shared with you, and there are 4 speakers tomorrow, and one of the speaker, Mr. Charanjit Singh, is the only person who's developed MOOC so far, and that MOOC is available on Swayam platform. The course is related with fitness and management, and earlier he also developed the course on, I suppose, on adapted physical education. So that's all for today. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. और आज चौधरी जी से मेरी बात हुई थी, तो 1 तारीख के बाद वो फ्री होंगे, तो रिसर्च पे मैंने एक लेक्चर उनका भी रखा है, एक जितना भी उनके पास टाइम होगा। ठीक है जी, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Dr. Yogesh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.